should move joined hands to take on the BJP. Then, of course, we have who are no longer the new kid on the block, but the most popular new kid on the block, if I may say so myself, the Tripura Motha, led by its charismatic leader Pradyot Debarma, the party chief, who has made the promise of a greater Tripura land, that is the entire poll plank that the Tripura Motha is contesting the polls on, the greater Tripura land promise, a promise that Pradyot Debarma says he will seek a constitutional solution for. But on the other hand, the BJP, after having tried to forge a sort of understanding with the Tripura Motha, have now said that there is something about this promise, which seems a little too far-fetched, a little impractical. We'll have to wait and watch what the people decide, because at the end of the day, it is the people who are the king, and they will decide the fate of a total of 259 candidates. जी बिल्कुल रौनक। तो आज जनता का दिन है और 2018 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 2018 में त्रिपुरा में 25 साल से चले आ रहे लेफ्ट के शासन को खत्म किया था। बीजेपी और आईपीएफटी ने उस वक्त साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को चुनाव में 36 और आईपीएफटी को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी गठबंधन के खाते में रौनक कुल मिलाकर 44 सीटें गई थी। उधर लेफ्ट के 16 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और अन्य खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि इस बार सीपीआईएम और कांग्रेस चुनावी मैदान में है। सुदीप राय बर्मन कुछ कह रहे हैं हमारे सहयोगी ज्योति हजारिका के साथ, वो हम आपको सुना देते हैं। Sudhita, we want to know how far, what is your view on the polling today? How has it been so far? Nice. BJP doesn't believe in democracy. They believe in muscle power. They believe in money power. They are obstructing, restricting the electors approaching the center. Many such incidents took place in many parts of the constituency, apart from the capital as of now. The capital bearing some places in 7 Ramnagar constituency, like in Sangmura and other places, bearing those places, other than the capital is okay, peaceful. But in other parts of the state, especially in the south, Rikshamukh, then where the former Chief Minister Dhanpur, where the Pratima Bhomik is contesting. Then in Mohanpur, one where Mr. Ratanlal is contesting. All these other places where the goons have been obstructing the electors from approaching the center. The police is a helpless, silent spectator. We have lost several complaints, but no action has yet been initiated against those hoodlums who are obstructing. In spite of that, we are going to have a confident majority. Your views on the role of EC today? EC, this booth center is all right, but they have completely, I think, misread the muscle power of the goons where the electors are being obstructed. And so, just one last question, sir. How much do you think CPM Congress alliance can? We'll get more than the requisite number, much more than the requisite number. So yes, indeed, viewers, that was, of course, Sudeep Rai Burman speaking exclusively to my colleague Jyoti Pasarika. Let's also listen in to what Papya Datta, who is contesting in the same seat from the BJP, has to say about her rival Sudeep Rai Burman, talking to Northeast Live. Listening. हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं बीजेपी की प्रत्याशी जो पापिया दत्ता, जो 6 अगरतला सीट से खड़ी हो रही है। पापिया दी, आज अभी तक जो है आपको कैसा लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है, कितना आपको स्ट्रांग फील हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, आज नहीं, पहले दिन से जब मुझे टिकट मिला, जब से मैं डोर टू डोर या कार्यक्रम में आ रही हूँ, हर एक जो वोटर्स से, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई है, सबके चेहरे में एक जो अलग एक आनंद मुझे दिखाई दिया। 2018 से पहले त्रिपुरा के लोगों के पास हम लोग जब जाते थे ना, तब जो एक इच्छा लोगों के मन में, लोगों की आंखों में हम लोगों को दिखाई देती थी कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए 25 साल की शासन से। तो वही इच्छा, वही एक होते हैं ना
मैं 6 अगरतला कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो हमारे जो वोटर्स हैं उनके आंखों में मैंने देखा। आज सुबह से मैं घूम रही हूँ, जितने भी सेंटर जा रही हूँ, वोटिंग परसेंटेज तो अच्छी है, अच्छा ही लग रहा है, सब वोट कर रहे हैं और मुझे तो एकदम मैं 100 से कुछ अभाव हो तो मैं बोल सकती हूँ जीत हमारी निश्चित है। इस सीट की अगर बात करें तो इसको जो है सुदीप रमन का गढ़ माना जाता है, इतने सालों से वो जीतते आ रहे हैं। क्या क्या आपको क्या लगता है कितने चांसेस है और ये कितना बड़ा चैलेंज आपको फील हुआ है? ऐसा कोई चैलेंज नहीं। देखिए 2018 में मैं तब महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। तब हम लोगों को पता था कि जो सीपीएम जो है ना उनका जो सूर्यास्त कभी नहीं होता है। ये माटी बोलते थे, ये माटी सीपीएम की घाटी है, घर माना जाता था। पर तब मैं महिला मोर्चा के अध्यक्ष थी। आज जो पापिया दत्ता को आप लोग देख रहे हैं, बिफोर 2015 मुझे कोई जानते नहीं थे, जो सच्चाई मैं बोल रही हूँ। बिफोर 2016 जो युवा मोर्चा जिसने जो अध्यक्ष थे, आज जो चंडीपुर से लड़ रहे हैं, उनको भी शायद इतना कुछ कोई नहीं जानते थे। इवन हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट थे, एक्स सीएम जो विप्लव कुमार देव जी खुद हम लोगों को बोलते, मोटिवेट करते कि देखो पापिया, हम लोगों को कौन जानते थे 2015 पर, ये टीम विप्लव कुमार देव जी से शुरू करके जो पन्ना प्रमुख तक जो टीम हम लोगों ने तैयार की थी, वही टीम ने लोगों के मन में जो एक ध्यान थी, धारणा थी कि सीपीएम इस राज्य से कभी नहीं जा सकते, वो हम लोगों ने तोड़ दिया। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग ला पाए। और दूसरी बात, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप अगर देखें, देखिए ये कोई नहीं कि हम लोगों के ऊपर विश्वास करके लोग बार बार हम लोगों को वोट करते जाएंगे और हम लोग बिना बताए लोगों को हम लोग बस पार्टी बदलते रहेंगे। पार्टी अपनी जो स्वार्थ के कारण, अपने खुद के स्वार्थ के कारण पार्टी बदलते रहेंगे, लोग कैसे ये ले सके। और जो सबसे बड़ी बात है, सीपीएम और कांग्रेस, आपको सबको पता है, एकदम जो शत्रु ही बोलते थे, एकदम ओपोनेंट थे, एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ। इस राज्य में जो 25 साल हो, सीपीएम का 25 साल हो या 5 साल जो बीच में जो कांग्रेस का रहा, इस राज्य में अबाव 1000 पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। किसने किसका किया? सीपीएम के माध्यम से कांग्रेस का ही ज्यादा हुआ है, कांग्रेस का ही शहीद ज्यादा है, सीपीएम की भी है जो 5 साल का राज रहा। तो लोग कैसे उसको मान ले? ऐसा नहीं है। इस बार मुझे विश्वास मेरी जनता ने मुझे दिया है कि देखो मेरा सब वोट आपको जाएगा, क्योंकि जो अलायंस जो हुआ है ना, अलायंस कांग्रेस और सीपीएम का नहीं हुआ है। हम लोग ये इसको बोलने में शायद हम लोग ठीक तरह से बोल नहीं पा रहे, ये अलायंस सीपीएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच नहीं हुआ, ये जो हुआ है टॉप लेवल के जो लीडर्स है ना उनको हुआ है। आप देखिए, और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, हमारे यहाँ के जो 4 बार 5 बार के जो विधायक है, सीपीएम के साथ उनका अलायंस किया, ठीक है। मैंने देखा सीपीएम के प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जाकर उन्होंने प्रचार किया, पर 4 बार के जो मुख्यमंत्री है मानिक सरकार जी, या जो सीपीएम के जो प्रदेश जो स्टेट सेक्रेटरी है जितेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर, आप माने आज के दिन के सबसे वरिष्ठ नेता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक, उनके लिए वो लोग क्यों प्रचार पे नहीं आए? मेरा ये क्वेश्चन है। इनके लिए सीपीएम क्यों प्रचार पे नहीं आए? कोई तो कारण है ना। आप अगर सीपीएम के कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जा रहे, आप लोग बोल रहे आप लोगों का अलायंस है, तो वो लोग क्यों नहीं आए? तो मतलब कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ कारण। क्या जो लोग चोरी चोरी चुपके चलती थी ये सब चीजें, आज ये खुल्लम खुला हो चुका है। लोग इसलिए अलायंस जितना मजबूत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूती के साथ हम लोग अभी लड़ रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं, सब हम लोग हैवीवेट है, हैवीवेट हर एक कार्यकर्ता है। जो एक आखिरी सवाल, तो आपको क्या उम्मीद है कितनी सीटों से बीजेपी इस बार जीत सकती है? हम लोग तो रिकॉर्ड जीतेंगे ना, एकदम रिकॉर्ड मार्जिन से हम लोग भारतीय जनता पार्टी इस केंद्र से हम लोग जीत रहे हैं। और मैं 60 नहीं बोलूंगी, अबाव मेरे ख्याल से अबाव 54-55 लेकर हम सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। There you have it, viewers. Papiya Datta, clearly a woman on a mission to create history, as she is up against the veteran Congress leader Sudeep Roy Burman from the Agartala constituency, and she seems I beg your pardon, Sudeep Roy Burman, and she seems undeterred. She seems undeterred by the fact that is Sudeep Roy Burman clearly stating that only Sudeep Roy Burman is not a heavyweight. We all are heavyweights. That is, of course, an unfazed Papiya Datta said, speaking to my colleague Joydeep Hazarika. Kavita.
तो लगातार हम राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सुना रहे हैं जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। इस बीच आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने माता बाड़ी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने हमारे सहयोगी से बात की और एक बार फिर भाजपा की जीत का दावा किया। वो भी हम आपको सुनाते हैं। हर निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट होती है और हम किसी निर्वाचन को छोटा बड़ा करके देखते नहीं है और क्योंकि वो निर्वाचन जनता के बीच में होती है, जनता सर्वोपरि है और जनता को सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसी दिशा में काम करता है। 2018 में शून्य से सरकार हम लोगों को दिया है जनता ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के होने के बावजूद भी 2 साल उसके बाद भी हम लोगों ने त्रिपुरा के हर सेक्टर में काम किया है और ये त्रिपुरा के डेवलपमेंट के पैरामीटर बताती है और त्रिपुरा का हर जनता उसको जानती है और त्रिपुरा बहुत लंबे समय एक अंधकारमय एक युग में पहुंच गए थे। आज त्रिपुरा के नौजवान के आंख में एक आशा के किरण दिखती है, महिला को चेहरे पे एक हंसी है और बुजुर्ग को एक अपने चेहरे पे एक विश्वास है। ये पहले थी नहीं, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद त्रिपुरा में हुई है और मेरा विश्वास है 23 का अभी जो निर्वाचन हो रही है, आज अनुष्ठित हो रहा है, तो इसमें लोग त्रिपुरा के लोग अपने भविष्य के निर्वाचन कर रहे हैं, अपना भविष्य कैसा होगा उसका निर्णय लेने जा रहे हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा जनता के सेवा में नियोजित होगा। The former Chief Minister there, viewers, Biplab Kumar Dev, speaking about the kind of development, the kind of change that he has witnessed in Tripura ever since the BJP and the IPFT formed the government back in 2018. Let's also, while we're at it, listen in to what the incumbent Chief Minister Manik Saha had to say. Take a look. সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো আছে, খালি সবার খেয়াল রাখতে হবে এই যে আনহুলি অ্যালায়েন্স হয়েছে এরা এগুলো ইনস্টিগেশন করবে, চারিদিকে এই ধরনের বোমাবাজি করতে পারে এবং হচ্ছেও। এই ধরনের এদের থেকে আমাদের প্রশাসন যারা এখন আমাদের নির্বাচন কমিশন আছেন, আমি ওনাদেরকে বলবো বিষয়টা দেখার জন্য, কারণ এইগুলো বলেই আমাদের উপরে ওরা আরো সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে আমাদের যারা কার্যকর্তারা আছে আমাদের পার্টি, তারা কোনো অবস্থায় এদের ইনস্টিগেশনের জন্য ওদের ফাঁদে যেন পারা না দেয়। ত্রিপুরাবাসী কি এই উন্নয়নের ধারা এইভাবেই বজায় রাখবে? 100% আমরা জিতবো। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি আমরা জিতবই। মানিকবাবু, ত্রিপুরাবাসী কি এই উন্নয়নের ধারা এইভাবেই বজায় রাখবে? এর বেশি নিশ্চয়ই বজায় রাখবে, আরো বেশি করব। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা করব। তাহলে কি গত বছরের তুলনায় এবছর মানে আসন সংখ্যা আরো বাড়বে। নিশ্চয়ই। তাহলে কি একক গরিষ্ঠতায় একদম একেবারে तो अपना वोट देने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं। আমি আমার ভোট দিলাম। আগরতলায় সকালের দিকে রামনগর এলাকায় কিছু সমস্যা তৈরি করা হয়েছিল, যা রিপোর্ট আমাদের কাছে এসছে। তাতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পুলিশ লাঠিচার্জ করছে নাকি তা? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ও মোবাইল টোবাইল নিচে গিয়ে ভাঙি চুরি। मुख्य चुनाव अधिकारी किरण गिट्टे हमारे सहयोगी पिनाकी दास के साथ मौजूद है, सीधे लिए चलते हैं। So our assistant news editor Pinaki Das is alongside the Tripura CEO Kiran Gitte. As you can clearly see on your screens, viewers, we will hear from the CEO in just moments from now. We will get back to Pinaki Das in moments here. However, what we were talking about here, Kavita, as per reports coming in, 2 CPIM polling agents were injured in Kakraban Shalgar constituency. I beg your pardon, Kakraban Shalgara constituency in Gomti district. And this is by far the only major incident of violence that has been reported from the state. So far, 2 CPIM agents have been injured as per reports. All right, we are going back to CEO. Let's take a look. Make this
election, a peaceful one, with his entire team. Sir, welcome to Northeast Live. So, sir, how are the people responding? There were some apprehension of violence and other things, and political parties were little apprehensive. Now, how was this thing till noon? What is happening? ये त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन 2023 बहुत बहुत स्पेशल है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इलेक्शन इंक्लूसिव है। जो लोगों को पहले कभी भी वोट करने का चांस नहीं मिलता था, जैसे 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग, उन्होंने घर पे वोटिंग किया है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन्होंने भी घर पे वोटिंग किया। हम उनको आज व्हील चेयर दे रहे हैं, हम उनको कंपेनियन आज दे रहे हैं। ब्रू माइग्रेंट्स है, थर्ड जेंडर है, टी गार्डन वर्कर्स है, हमारे यहाँ पे ब्रिकलिंग वर्कर्स है। हमने सबको इंक्लूसिव करके हमने इस वोटिंग के प्रक्रिया में लाया है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। आज सभी 3337 पोलिंग स्टेशन में 2 से ज्यादा पोलिंग एजेंट है। ये त्रिपुरा में पहली बार हुआ है कि कोई पोलिंग बूथ में, एक भी ऐसा पोलिंग बूथ में जिसमें कोई पोलिंग एजेंट ना हो या एक ही पोलिंग एजेंट है। हमने वेब कैम बिठाया है सभी पोलिंग स्टेशन में, जिसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। 95% से ज्यादा हम उसको लाइव दिखा रहे हैं, उसका डेटाबेस हमारे पास आ रहा है। माइक्रो ऑब्जर्वर सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन में है। थर्ड है कि ये इलेक्शन पार्टिसिपेटिव है। हमने अभी 11 बजे तक रिकॉर्ड 32% वोटिंग देखा है, 12 बजे तक 40% हमने क्रॉस किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि त्रिपुरा देश में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। और ये जो पीसफुल इलेक्शन जो डिमांड थी, आपने जैसे बताया पॉलिटिकल पार्टीज की, पब्लिक की डिमांड थी, तो इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर से ही 400 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां हमारे पास भेजी है, स्टेट पुलिस, टीएसआर, और हमने मिशन जीरो पोल वायलेंस लॉन्च किया है, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज, इमिनेंट सिटीजन्स, मीडिया हमें इसका साथ दे रहा है। और आज हमारी सुबह 5:30 से हमारी सब पोलिंग कर्मी हमारे काम कर रहे हैं। उनको हमने एक मिशन दिया है, जीरो रिपोल। आज कुछ कुछ जगह पे हमें ईवीएम मशीन दुरुस्त नादुरुस्त होने के कारण हमें रिप्लेस करनी पड़ी, बट जिस गति से और जिस ट्रांसपेरेंसी से वोटिंग चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये इलेक्शन त्रिपुरा में पहली बार बिना रिपोल के भी होगा। ये है मेनली रिपोल के बिना होगा, पर इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे अपने एक नंबर दिए हैं सबको, लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, और कुछ कुछ छोटे छोटे घटना हुए उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, और अगर कोई वोट ना दे पाए, 2 एक वीडियो आया भी है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तरफ से? हमने एक सी विजिल ऐप हमने लॉन्च किया है, जिसमें हमें 3200 से ज्यादा कंप्लेंट्स आए हैं, और हमने वो 90 मिनट्स के एवरेज टाइम पे रिस्पॉन्ड किए हैं। हमने सभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर हेल्पलाइन दिए हैं, एक लैंडलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर। इसमें भी करीब 2600 कंप्लेंट हमें मिले हैं, जो हम कुछ मिनटों में हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कुछ अगर नागरिक है जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वोट करने में असुविधा है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अप्रोच करें। आप टेंडर वोट के माध्यम से वोट कर सकते हैं। तो मैं सभी जो वोटर है उनको आह्वान करूंगा कि आज हमारा त्रिपुरा में डेमोक्रेटिक फेस्टिवल चल रहा है, आप उसमें शामिल होइए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप वोटिंग करिए। क्या लोग निकल के आ रहे हैं बहुत मात्रा में? हमें जो सुबह दिखाई दिया, तो दोपहर को कितने % आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? क्योंकि 90% के करीब तो होता था इस टाइम में, तो अभी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2018 में 89% यहाँ पोलिंग हुई थी, और हम उसको क्रॉस करने की उम्मीद रखते हैं। सुबह 7 बजे हमारे यहाँ पे पोलिंग शुरू होती है। पोलिंग शुरू होने से पहले ही 250-300 वोटर्स लाइन में लगे थे। इससे ये वोटर्स में उत्साह दिखाई देता है, और हमारी पोलिंग मशीनरी पूरी तैयार है कि जितने भी वोटर्स आएंगे हम उनका वोटिंग करके टाइम में वोटिंग करके लेंगे। तो ये थे सीईओ त्रिपुरा जो बोल रहे एक नया हिस्ट्री क्रिएट करेगा इस इलेक्शन, एंड वी एक्सपेक्ट दैट इज वो हो, और इससे त्रिपुरा के बारे में एक नया मैसेज जाएगा पूरा इंडिया को कि किस तरह वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और लोग जो अपने राइट्स फॉर वोटिंग उसको इस्तेमाल किए हैं। विद कैमरा पर्सन विश्वजीत दे,
पिनाकी दास फॉर नॉर्थ ईस्ट लाइव। तो मुख्य चुनाव अधिकारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की नॉर्थ ईस्ट लाइव ने। त्रिपुरा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी, ये कहना है मुख्य चुनाव अधिकारी किरण गिट्टे का। बगैर रिपोल, जीरो रिपोल के चुनाव होने की उम्मीद जताई किरण गिट्टे ने। नया इतिहास बनाएगा इस बार का चुनाव, ये कहना है मुख्य चुनाव अधिकारी किरण गिट्टे का। तो जीरो रिपोल के साथ इस बार चुनाव होने की उम्मीद जताई है और साथ ही कहा कि बड़ी तादाद में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी राज्य में। जी बिल्कुल कविता, and of course the CEO Kiran Gitte has also said that the kind of arrangements that they've made this time for ensuring a smooth and peaceful conduct of elections is unprecedented in the state. There have been webcams set up so that live monitoring can be done, and besides a host of other arrangements that have been put in place to ensure that there is absolutely no fear in the minds of the voters as they come out in large numbers and vote in this crucial polling day. And the state of course is already known for a large number of people coming out and casting their votes, and of course why not this time too, they are looking to break their very own record, isn't it Kavita? जी बिल्कुल रौनक, हमारे सहयोगी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में मौजूद हैं, हम उनसे भी वहां की रिपोर्ट जानेंगे। विक्रम सरकार हमसे जुड़े हैं नॉर्थ त्रिपुरा से। विक्रम, आप कौन से मतदान केंद्र के बाहर मौजूद है और कितनी प्रतिशत वोटिंग दर्ज हो चुकी है वहां पे? जी हाँ कविता, अभी हम लोग नॉर्थ त्रिपुरा के धर्म एरिया में हैं और जिस मतदान केंद्र में हम लोग खड़े हैं ये है राजबाड़ी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धर्मनगर के हर एक क्षेत्र में बहुत ही अच्छे से मतदान हो रही है। और हम अगर बात करें आंकड़ों की, कुल मतदाताओं के टर्नआउट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ त्रिपुरा में अब तक 29.48। तो हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है नॉर्थ त्रिपुरा के धर्मनगर के मतदान केंद्र में। जी विक्रम। हाँ कविता, मैं बता रहा था कि धर्मनगर में कुल अभी तक 11 बजे के जो समय है उससे आंकड़ा जो निकल के आता है कि 31.11% मतदान हुआ है अभी तक और पूरे नॉर्थ त्रिपुरा में 29.48% का वोट कास्टिंग हुआ है। कविता जी बिल्कुल, तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है त्रिपुरा में। आप धर्मनगर में मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग हमें नजर आ रहे हैं वहां। विक्रम, आप लगातार त्रिपुरा चुनाव को कवर कर रहे हैं, प्रचार से लेकर वोटिंग तक आप डटे हुए हैं। चुनावी बयार आपको किस ओर नजर आ रही है? कविता, अभी इन दौरान मतदान के दौरान यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई ऐसे चुनावी वादे या चुनावी नारे हमें नजर नहीं आए हैं। लोग काफी खुश हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पूरी सहूलियत उन्हें प्रदान की है। सुरक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें या जो भी डिसेबल पर्सन है या बुजुर्ग हैं मतदान करने जाते हैं उनके लिए पूरी सहूलत यहाँ पे मुहैया करवाई जा रही है। सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती यहाँ पे की गई है। जैसे कि हम जानते हैं कुल 50,000 से ज्यादा जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, तो लोग काफी खुश हैं और वो यही चाहते हैं कि जिस तरह से आज का मतदान शुरू हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से, उसी तरह कैसे ये मतदान खत्म हो शाम को और लोग आराम से आ सके, घर से निकल के आ भी रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं बहुत सारे महिला यहाँ पे खड़ी है, पुरुष भी यहाँ पे है क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है तो धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर से जो लोगों का आना है वो बढ़ जाएगा, आराम से घर से काम करके वो लोग आ रहे हैं और बहुत ही खुश है और यही चाहते हैं कि अच्छी तरीके से ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो। कविता जी बिल्कुल विक्रम, तस्वीरों में आपने दिखाया बड़ी तादाद में मतदाता पहुंचे हैं मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संतुष्ट है, आपके जरिए जानना चाहेंगे विक्रम? जी हाँ, हमने कई मतदाताओं से बात की अलग अलग मतदान केंद्रों में और वो काफी खुश हैं और सिक्योर्ड फील कर रहे हैं। जिस तरह से सुरक्षा की बंदोबस्त की गई है, लोग काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आराम से घर से निकल के आ रहे हैं। कई जगहों पे तो देखा गया है कि बच्चों के साथ भी मतदान केंद्रों में आए हैं। ये प्रूव करता है कि वो कितने सुरक्षित फील कर रहे हैं इस बार, क्योंकि बहुत ही अच्छे और सुचारू रूप से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो चलाई जा रही है। हर एक मतदान केंद्र में हमने देखा है असिस्टेंस के लिए वेब डेस्क, हेल्प डेस्क बिठाई गई है और हर एक
मतदान केंद्र के अंदर वेबकास्टिंग की सुविधा है। हर एक पोलिंग स्टेशन जहां हमने घुमा, हर एक जगह पे वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में हो रहा है, ये हमने देखा है। जी कविता, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम, हमें वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 40% वोटिंग दर्ज हो चुकी है त्रिपुरा में। सीईओ कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी और उसी की तादाद में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 12 बजे तक दोपहर के 40% वोटिंग दर्ज हो चुकी है त्रिपुरा में। Absolutely, Kavita. As we just heard the CEO Kiran Gite say, and this is along the lines of what he has just said, speaking exclusively to Northeast Live. 40% voting percentage recorded as of now. This is the latest voting percentage that has been recorded. Just a short while back, we saw it was hovering somewhere around the 32% mark, and now it has shot up to 40%. Indeed, the words of Kiran Gite, the CEO, may just come true, and Tripura may end up breaking its own voting record. It is already known for coming out in large numbers and voting as far as voting for the elections is concerned, and it is on track to break its own record as 40% of voting percentage has been recorded as of now. जी बिल्कुल रौनक, और सीईओ कह रहे हैं कि इस बार जीरो रिपोल के साथ चुनाव होगा, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल रहे हैं। 28 लाख मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है और दोपहर 12 बजे तक 40% वोटिंग दर्ज हो चुकी है। हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे चुनाव की, मतदान की, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक। Will Conrad Sangma get lucky one more time? Right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably if you compare them to the previous election. बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन। How is your party going to fight this election? Are you confident? দেশৰ প্ৰতিখন ঘৰেই মোৰ পৰিয়াল আৰু মোৰ প্ৰতিজ্ঞা হ'ল প্ৰতিখন ঘৰলৈ 100% বিশুদ্ধ সামগ্ৰী যোগান ধৰাটো। পতঞ্জলি গৰুৰ ঘি, কচ্চি ঘানি সৰিয়হৰ তেল, মছলা, কেশৰ, আটা, দালি তথা চাউল আদি সকলো সামগ্ৰী পতঞ্জলিৰে ঘৰলৈ আনিব। নিজৰ মৰমৰ শিশুটো আৰু পৰিয়ালক ভেজালকৰণৰ বিহৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? Right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably if you compare them to the previous election. बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन। How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. মায়ে নিজ হাতেৰে মঠি উলিওৱা ঘিৰ দৰে সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত পতঞ্জলি গাই গৰুৰ দেশী ঘি খাওক, নিজৰ পৰিয়ালক ভেজালকৰণৰ বিহৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। ও বা মাত্ৰ 9 rupeesত মিছৰ ৰকেট দি আৰে চাব আকৌ যাতে উৰি না যায় গৈ টকিয়াই ধৰিব 17ৰ পৰা 19 টাইমৰ ভিতৰত কেৱল মিছৰ এপত। News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time?
Right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably, if we compare them to the previous election, बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably, if we compare them to the previous election, बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening. Welcome back, viewers, and we here at Northeast Live are bringing you relentless coverage of a voting day live from Tripura 2023. All right, viewers, before we move any further, let's take a look at one of the key profiles and a very important candidate who is contesting this current elections, and that is, of course, the incumbent Chief Minister of Tripura, Dr. Manik Saha. Well, Dr. Manik Saha is contesting from the town Bordwali constituency. The Chief Minister, Manik Saha, is contesting, and this is the second time that Manik Saha is contesting from this seat. He won the by-polls from the constituency. Last year, beating the Congress's Ashish Saha by over 6,000 votes after taking charge as the Chief Minister over from Biplab Kumar Deb. So, Town Bordwali has over 45,000 voters. Saha, of course, is a former Rajya Sabha MP and was also the Tripura BJP president as well. And on the other hand, the Congress's Ashish Kumar Saha is up against Chief Minister Manik Saha. Ananta Banerjee from the Trinamool Congress, Arnab Roy from the Republican Party of India A, and two independents are also in the fray from the same constituency. Meanwhile, let's also talk about the Deputy Chief Minister Jishnu Debarma, who is contesting from the Chaliram constituency. Chaliram, of course, being a reserved seat for the scheduled caste, is considered the bastion of Debarma, who won the seat with a whopping margin of over 25,000 votes back in 2018. Jishnu Debarma is up against Congress's Ashok Debarma and Subodh Debarma of the Tripura Botha this time. And then, of course, Congress's Sudeep Roy Burman is going all out to retain his Agartala seat, where he has been undefeated ever since 1998. A health minister in the then Biplab Deb-led government, Roy Burman had quit the BJP last year and joined the Congress and won the by-poll from the Agartala seat. Roy Burman is arguably the Congress's face in Tripura, and his main opponent is the BJP's Papya Datta. Tripura BJP President Rajiv Bhattacharjee is contesting from Banamalipur, the seat of former Chief Minister Biplab Deb. Well, Rajiv Bhattacharjee's opponents include Santanu Saha of the TMC, Gopal Chandra Roy of the Congress, and there are two independents contesting as well by the name of Brajalal Debnath and Sujata Datta. Then let's also take a look at the contest that is going on in Dhanpur, where none other than the Union Minister of State Pratima Bhomik is contesting. Bhomik had won the West Tripura Lok Sabha seat back in 2019 with a comfortable margin. Bhomik is up against Kaushik Chanda of the CPIM,
Habil Mia from the TMC, Amnia Dalal Noshia of Rakesh Shukla Das. तो ये है वो चेहरे जिन पर दाव लगी हुई है, बड़े चेहरे भाजपा के। जैसा कि रौनक ने बताया, साल 2018 के चुनावों में भाजपा के टिकट पर आशीष कुमार साहा ने टाउन बरदवाली पर पार्टी का खाता खोला था। ये 2018 की बात है, लेकिन भाजपा के आशीष कुमार साहा के पार्टी बदलने के चलते साल 2022 में इस सीट पर उपचुनाव हुए और कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने दावेदारी पेश की, जिसमें भाजपा के डॉक्टर माणिक साहा ने जीत हासिल की और प्रदेश के सीएम की कमान संभाली। आज दोनों के बीच एक बार फिर मुकाबला है। दोनों बड़े नेता टाउन बरदवाली से एक बार फिर आमने सामने हैं। जी बिल्कुल कविता, and also let me tell our viewers another very interesting fact about the Dhanpur constituency from where the Union Minister of State Pratima Bhaumik is contesting. She is up against, of course, a fresh face that has been fielded by the CPIM. But earlier this seat used to be the bastion of the former Chief Minister Manik Sarkar. And of course, in fact, Bhaumik had lost to Sarkar from Dhanpur in the previous elections. But as we all know, Manik Sarkar is decided not to contest the polls this time around, and the CPIM instead have contested a fresh face in place of the veteran politician Manik Sarkar. तो भाजपा ने अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए इस बार प्रदेश की सभी 20 जनजातीय सुरक्षित विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत झोंकी हुई है। पिछले 2018 के चुनावों में भी भाजपा आईपीएफटी गठबंधन ने सभी 20 सीटों पर अपनी जीत का वर्चस्व कायम रखा था। इस बार भी इन सीटों पर भाजपा और गठबंधन का पूरा फोकस है। टाउन बरदवाली सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस सीट पर प्रदेश के सीएम डॉक्टर माणिक साहा की साख टिकी हुई है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सीपीएम की जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत तरह से पेश करने की चुनौती में है। All right, so we are now being joined on this live broadcast by a guest who will be speaking to us regarding this crucial voting day live coverage that we are bringing to you on our channel, Northeast Live viewers. I'm being joined now by the BJP's Subrato Chakraborty. First of all, Mr. Chakraborty, thank you so much for giving us your time on this very significant day for Tripura as the people go out and vote for a new government. Mr. Chakraborty, coming to you with my first question this morning, as we have seen, the state of Tripura has always been right out there as far as voting in large numbers is concerned. Now, talking about the main contest here that is going on in Tripura, as we know, the BJP as well as the Tripura Motha, they have both given out clear hints time and time again that they both consider each other their main rivals, their main challenge in this ongoing election. So, the BJP has always said that what Pradyut Dev Burma is promising for his supporters, for his followers, is something that is impractical. They need a reality check. Whereas on the other hand, the main problem that the Tripura Motha has had with the BJP is that their promises never translate into action. So what is the way here, and what do you make of this entire thing, Mr. Chakraborty? See, what Tripura Motha is demanding in the name of Greater Tripura Land, and they didn't yet clarify the view of Greater Tripura Land. What would be, whether it will be a geographical areas to be expanded, and if yes, how, and what are the areas to be included. So there are a lot of confusions in the statements of our demand of Greater Tripura Land, and one of their leader in your channel also, Animesh Devarma, he told they want state within state. So BJP is not supporting or will never support any divisive politics here in the name of Greater Tripura Land to divide the state or to make a state within state. These sort of demands are not constitutional, and that's why we are not actually supporting these sort of demands. But whether the question of constitutional solutions, the BJP has already promised well ahead of this poll before that ADC election. We have promised that we want that that ADC should be converted into Tripura Territorial Council, and numbers of seats to be increased, and direct funding should be provided for development of people living in ADC areas. So these are our commitment to the areas of autonomous council areas,
That's why their demand, if it is legitimate, then only we can accept, we can support. Otherwise, we can't. Our stand is very much clear. And Tripura Motha is obviously is a emerging political party in Tripura. But if you consider actually main rival is this CPM and Congress alliance, what is happening in Tripura for the first time, that two major opponent parties who were rivalry for last decades, they have come together and make an alliance in this election. Right. All right. So, Mr. Chakraborty, what about what the claims that Pradyot Debarma and the Tripura Motha are making in general? What they are saying about the BJP is that, as far as the, schemes are concerned, these centrally sponsored schemes, is despite there being several of them, those are not translating into proper development on the ground as far as the tribal population is concerned in Tripura. This is something that they have said time and again, that the BJP schemes of development are not reaching the tribal population. And as far as they are concerned, their situation, their plight still remains the same as was back in 2018. So what do you have to say on that, Mr. Chakraborty? Actually, it's a baseless allegation that BJP is not realizing their central schemes and other facilities to the Janjati peoples, the tribal peoples of Tripura. Because you see, for the last 5 years of BJP rule here, we have given over 3 lakhs of houses to Prime Minister Awas Yojana. Beneficiary were also tribal peoples. We have provided Nal Se Jal, means in Jal Jeevan Mission, we have pipeline water supply to 4,16,000 peoples were given Nal Se Jal facilities. That's why if you say in Prime Minister Gram Sadak Yojana, 591 kilometer road has been constructed. So in case of communication, in case of 17 acre of the schools are being built in ADC areas, Janjati areas. So in case of health, in case of agriculture, if you say also, there are also tribal people who are peasant. So they are also being provided Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi rupees 6,000 per year. And we have now committed to increase that up to 8,000. So all these facilities, if you say education sector, if you say health sector, if you say infrastructure build up, multi-speciality hospitals are being built up in ADC areas in Khomlung and Ambasa also. So in every spectrum, what we are to do for the ADC peoples, for the tribal peoples of Tripura, this government has always very much committed, and they have realized a lot of things to the peoples. So to make a sensation among the peoples and to create some emotional issues, to have some vote in favor of Tripura Motha, they are lying to the people that BJP is not realizing all these things. जी बिल्कुल चक्रवर्ती जी, ये तो हो गई त्रिपुरा मोथा के आरोपों की बात, लेकिन अगर प्रचार की हम बात करें तो दूसरी पार्टियों की तुलना में भाजपा ने इस बार जोरों पर प्रचार किया, पूरी ताकत झोंक दी चुनाव प्रचार में। फ्लोटिंग वोटर्स को साधने की जो कोशिश हुई थी भाजपा की, क्या लगता है आपको, क्या भाजपा उसमें कामयाब हो पाई? बिल्कुल, देखिए, जब चुनाव आते हैं तो भाजपा चुनाव को एक टीम वर्क के जरिए काम करते हैं चुनाव के टाइम में। तो स्वाभाविक है कि हमारे इस चुनाव अभियान जो चले हैं, तो उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे, और भी सारे जो नेता है, हुनर नेता है, वो लोग आएंगे, ये स्वाभाविक है। तो और भी प्रदेश से, जैसे कि वेस्ट बंगाल से जो विपक्ष के लीडर हैं, शुभेंदु अधिकारी, ऐसे बहुत सारे लीडर्स आए हैं हमारे यहाँ पर चुनाव के प्रचार के लिए। और इसमें क्या हुआ कि ऐसे तो हम रिपोर्ट कार्ड लेके ही जनता के पास जा रहे हैं कि हमें क्यों वोट करेगा, हमने क्या परफॉर्म किया है, क्या उनको दिया है। तो इससे आम जनता में एक खुशी है, और ये जनता ये जानते हैं कि करीब करीब 2.5 साल कोविड का जो एक विषय था, उसके अलावा भी डेवलपमेंट में कोई कमियां नहीं आई। यहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क के विषय में कोई नेगोशिएशन नहीं किया सरकार ने।
और जितना हो सके हीरा का मॉडल हो या जनजाति हो या जो अंत्योदय यानी पूरेस्ट पीपल्स, पुअर एंड पोरेस्ट पीपल्स, उनके डेवलपमेंट के लिए जो करना है ये हमने सब किए हैं। तो इसीलिए हम जनता के बीच में जाने के समय वो अगर सेंट्रल लीडर भी बोले कि हमने ये किया है और ये करने वाले हैं, और स्टेट लीडर्स भी बोले कि हमने ये किया है और ये करने वाले हैं अगले जब मिनिस्ट्री बनेगा, तो इसमें तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है जनता की, और हमें लग रहा है कि जनता के बीच में वो कॉन्फिडेंस बढ़े हैं और हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। सुब्रत जी, सीपीआईएम और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए ये क्या कहूं इसको, ये गठबंधन आम आदमी के हित में नहीं है, ये गठबंधन चुनिंदा नेताओं के हित के लिए किया है। क्योंकि अगर हम बात करें 1988 से 88 टू 93, जब यहाँ पर कांग्रेस और क्यूजेएस का एक सरकार था, गवर्नमेंट था, उस समय बहुत सारे सीपीआईएम के कैडर्स को मार दिया गया, जिंदा जलाया गया, उन्हें उनके जमीन से दूर कर दिया और यहाँ तक कि स्टेट से भी बाहर कर दिया। और सेम विषय हुआ जब 93 से 2018 तक यहाँ पर जब सीपीआईएम लेफ्ट फ्रंट का गवर्नमेंट चल रहा था, तो उसी वक्त बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता को खून किया गया, उनको घर से निकाला गया, उनका जमीन छीन लिया गया, जिंदा जलाया गया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अभी ये अलायंस इस दोनों पार्टी के बीच में हुआ है, तो इसका जो सपोर्टर्स थे, जिन्होंने वो झेला है, वो अत्याचार झेला है, जिन्होंने वो बेटा को हराया, जिस माँ ने, जिस पिता ने बेटी को खोया है, तो वो तो नहीं इसको मानेंगे ना, और इसके खिलाफ ही उसका मैंडेट होगा, ये हमें पक्का है कि। जी बिल्कुल। चक्रवर्ती जी, एक और सवाल है आपसे। फिलहाल तो तिपरा मोथा की भाजपा से बात नहीं बनी, लेकिन क्या चुनाव बाद सीपीआईएम तिपरा मोथा के साथ तालमेल बिठा सकती है? क्योंकि ऐसे संकेत दे चुके हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार जितेंद्र चौधरी, और जितेंद्र चौधरी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि हो सकता है चुनाव बाद तालमेल कुछ बिठा सके सीपीआईएम और तिपरा मोथा में। तो ऐसे में क्या भाजपा की चुनौती बढ़ सकती है? देखिए, सीपीआईएम किसके साथ क्या करेंगे सीपीआईएम के विषय है, और तिपरा मोथा का भी खुद का विषय है कि किसके साथ जाएंगे। लेकिन एक विषय तो पक्का है कि अगर तिपरा मोथा चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिले, एडीसी को और क्षमता मिले, ये देने वाले भारतीय जनता पार्टी ही है। और क्योंकि सीपीएम ने भी साफ तौर से कह दिया है कि हम भी नहीं चाहते हैं कि त्रिपुरा को डिवाइड किया जाए। कांग्रेस ने भी कहा है कि हम भी नहीं चाहते हैं कि त्रिपुरा को डिवाइड किया जाए, जो बहुत पहले से भाजपा कह रहे हैं। तो इसके बाद में ये त्रिपुरा मोथा को तय करना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, अगर उसके जो जनजाति हैं, जो ट्राइबल्स है, उनके लिए कुछ खास पैकेज चाहिए और कुछ संविधान के कुछ अमेंडमेंट की जरूरत अगर कुछ विषय पे होना चाहिए, तो ये कौन करेगा? ये करने के लिए तो सेंट्रल में पावर में होना चाहिए, बहुमत तो पार्लियामेंट में आना चाहिए बिल। तो आपका कहना है कि आदिवासियों के विकास के लिए जी, तो आपका कहना है कि आदिवासियों के विकास के लिए तिपरा मोथा को भाजपा के साथ मिलकर ही काम करना होगा? अगर करे तो बेहतर, उनको तय करना होगा। अगर सच्चाई से चाहते हैं कि जनजाति के विकास हो, तो भाजपा के साथ काम करने से क्या दिक्कत क्या है उनका? जी, वो उनको तय करना है ना। तो गेंद कहीं ना कहीं तिपरा मोथा के पाले पर है और उनको ही फैसला लेना है कि जनजातियों के अगर विकास करना है तो आगे उन्हें कदम क्या उठाना है। ये कहना है सुब्रत चक्रवर्ती का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुब्रत जी, हमें अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए हमें। तो इस वक्त चुनाव जारी है, लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी किरण गिट्टे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं। We are joined by the CEO Tripura, Kiran Gitte, who has taken this initiative to make this election a peaceful one with his entire team. Sir, welcome to Northeast Live. So, sir, how are the people responding? There were some apprehension of violence and other things, and political parties were a little apprehensive. Now, how was this thing till noon? What is happening? ये त्रिपुरा
असेंबली इलेक्शन 2023 बहुत बहुत स्पेशल है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इलेक्शन इंक्लूसिव है। जो लोगों को पहले कभी भी वोट करने का चांस नहीं मिलता था, जैसे 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग, उन्होंने घर पे वोटिंग किया है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन्होंने भी घर पे वोटिंग किया। हम उनको आज व्हील चेयर दे रहे हैं, हम उनको कंपेनियन आज दे रहे हैं। ब्रू माइग्रेंट्स है, थर्ड जेंडर है, टी गार्डन वर्कर्स है, हमारे यहाँ पे बिकलिंग वर्कर्स है। हमने सबको इंक्लूसिव करके हमने इस वोटिंग की प्रक्रिया में लाया है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। आज सभी 3,337 पोलिंग स्टेशन में 2 से ज्यादा पोलिंग एजेंट है। ये त्रिपुरा में पहली बार हुआ है कि कोई पोलिंग बूथ में, एक भी ऐसा पोलिंग बूथ नहीं जिसमें कोई पोलिंग एजेंट ना हो या एक ही पोलिंग एजेंट है। हमने वेब कैम बिठाया है सभी पोलिंग स्टेशन में, जिसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। 95% से ज्यादा हम उसको लाइव दिखा रहे हैं, उसका डेटाबेस हमारे पास आ रहा है। माइक्रो ऑब्जर्वर सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन में है। थर्ड है कि ये इलेक्शन पार्टिसिपेटिव है। हमने अभी 11 बजे तक रिकॉर्ड 32% वोटिंग देखा है, 12 बजे तक 40% हमने क्रॉस किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि त्रिपुरा देश में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। और ये जो पीसफुल इलेक्शन, जो डिमांड थी, आपने जैसे बताया पॉलिटिकल पार्टीज की, पब्लिक की डिमांड थी, तो इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर से ही 400 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां हमारे पास भेजी है, स्टेट पुलिस, टीएसआर, और हमने मिशन जीरो पोल वायलेंस लॉन्च किया है, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज, इमिनेंट सिटीजन्स, मीडिया हमें इसका साथ दे रहा है। और आज हमारी सुबह 5:30 से हमारी सब पोलिंग कर्मी हमारे काम कर रहे हैं। उनको हमने एक मिशन दिया है, जीरो रिपोल। आज कुछ कुछ जगह पे हमें ईवीएम मशीन दुरुस्त नादुरुस्त होने के कारण हमें रिप्लेस करनी पड़ी, बट जिस गति से और जिस ट्रांसपेरेंसी से वोटिंग चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये इलेक्शन त्रिपुरा में पहली बार बिना रिपोल के भी होगा। ये है मेनली रिपोल के बिना होगा, पर इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे अपने एक नंबर दिए हैं सबको, लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, और कुछ कुछ छोटे छोटे घटना हुए उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, और अगर कोई वोट ना दे पाए, 2 एक वीडियो आया भी है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी तरफ से? हमने एक सी विजिल ऐप हमने लॉन्च किया है, जिसमें हमें 3200 से ज्यादा कंप्लेंट्स आए हैं, और हमने वो 90 मिनट्स के एवरेज टाइम पे रिस्पॉन्ड किए हैं। हमने सभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर हेल्पलाइन दिए हैं, एक लैंडलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर। इसमें भी करीब 2600 कंप्लेंट हमें मिले हैं, जो हम कुछ मिनटों में हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कुछ अगर नागरिक है जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वोट करने में सुविधा है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अप्रोच करें। आप टेंडर वोट के माध्यम से वोट कर सकते हैं। तो मैं सभी जो वोटर हैं उनको आह्वान करूंगा कि आज हमारा त्रिपुरा में डेमोक्रेटिक फेस्टिवल चल रहा है, आप उसमें शामिल होइए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप वोटिंग करिए। लोग निकल के आ रहे हैं बहुत मात्रा में, हमें जो सुबह दिखाई दिया, तो दोपहर को कितने % आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, क्योंकि 90% के करीब तो होता था इस टाइम में, तो अभी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2018 में 89% यहाँ पोलिंग हुई थी, और हम उसको क्रॉस करने की उम्मीद रखते हैं। सुबह 7 बजे हमारे यहाँ पे पोलिंग शुरू होती है। पोलिंग शुरू होने से पहले ही 250-300 वोटर्स लाइन में लगे थे। इससे ये वोटर्स में उत्साह दिखाई देता है, और हमारी पोलिंग मशीनरी पूरी तैयार है कि जितने भी वोटर्स आएंगे हम उनका वोटिंग करके टाइम में वोटिंग करके लेंगे। तो ये थे सीईओ त्रिपुरा, जो बोल रहे हैं एक नया हिस्ट्री क्रिएट करेगा इस इलेक्शन, एंड वी एक्सपेक्ट दैट इज वो हो, और इससे त्रिपुरा के बारे में एक नया मैसेज जाएगा पूरा इंडिया को कि किस तरह वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और लोग जो अपने राइट्स फॉर वोटिंग उसको इस्तेमाल किए हैं। विद कैमरा पर्सन विश्वजीत दे, पिनाकी दास फॉर नॉर्थ ईस्ट लाइव। So that was the CEO Kiran Gite speaking exclusively to our assistant news editor Pinaki Das about the security arrangements in place this time around. Let us also turn our attention to another very significant development taking place during this particular election, and that is of course the displaced Brew voters. The Brew voters, viewers, who are a total of 14,005 in number, enrolled in the final electoral rolls this time around, and are also casting their votes for the very first time in Tripura.
Well, the 14,005 Brew voters are amongst those who fled to Tripura and took shelter in Kanchanpur and Panisagar subdivisions. The Brew voters are casting their votes in different polling stations spread across 4 districts of the state. So yes, indeed, viewers, a very, very important and significant development here this, as the Brew voters are also casting their vote this time around, isn't it, Kavita? जी बिल्कुल। तो मिजोरम से विस्थापित हुए 14,005 ब्रू मतदाता जो फिलहाल त्रिपुरा में रह रहे हैं, आज उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार 14,005 ब्रू मतदाताओं ने त्रिपुरा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये त्रिपुरा में कंचनपुर और पानी सागर में शरण लिए हुए हैं। ब्रू वोटर पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए राज्य के 4 जिलों में ये फैले हुए हैं और राज्य के 4 जिलों के मतदान केंद्रों में आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं 14,005 ब्रू मतदाता। Absolutely, Kavita. And these are visuals that you see on your screen that speak volumes about how significant this entire development is. Brew voters in large numbers coming out and exercising their right to franchise, a right that they claimed and they had been displaced and they were missing, that they were deprived of their rights for the longest time, are now finally getting to exercise their franchise and vote for this crucial Tripura elections as the entire state votes for a new government. And the Tripura Brew voters are this time also not to be left behind. An inclusive voting that is being conducted in Tripura this time, as has been stated by the CEO himself, Kiran Kite. जी बिल्कुल। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में ब्रू मतदाताओं ने भी हिस्सा लिया और कुल मिलाकर अगर बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच त्रिपुरा के 3,337 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, जिनमें से 1100 संवेदनशील और 28 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। एहतियाती उपायों के तहत राज्य भर में पहले ही निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और ये 17 फरवरी की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। उपद्रवियों को राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को भी सील किया गया है और 12 बजे तक 40% वोटिंग राज्य में दर्ज हो चुकी है। जी बिल्कुल कविता, and of course a relentless coverage of a polling day live from Tripura will continue right here on Northeast Live. And of course brisk voting is underway since the early hours of the morning. The state already known for coming out in large numbers and exercising their franchise. We will keep bringing you all the live coverage as our reporters are on the ground bringing us minute to minute updates, and of course we here will be bringing it across to you, our viewers. For now, it's thank you and goodbye. মায়ে নিজ হাতেৰে মঠি উলিওৱা ঘিৰ দৰে সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যসন্মত পতঞ্জলি গাই গৰুৰ দেশী ঘি খাওক, নিজৰ পৰিয়ালক ভেজালকৰণৰ বিহৰ পৰা ৰক্ষা কৰক। Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? Right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably if you compare them to the previous elections. बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन। How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. সকলো মাৰি কৰিলো মঞ্চ কিন্তু নাপালো পাৰফেক্ট ক্ৰাঞ্চ। Perfect crunch. ই হল নতুন সানফিস্ট মাৰি লাইট। নতুন মসমসিয়া সানফিস্ট মাৰি লাইটত আছে বাছনি কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ। তেন্তে আপুনি বাৰু পালে নে আপোনাৰ পাৰফেক্ট ক্ৰাঞ্চ?
ও বাহ মাত্ৰ 9 ৰুপিজত মিছৰ ৰকেট ডিল আৰে আৰে চাব আকৌ যাতে উৰি নাযায়গৈ থপিয়াই ধৰিব 17ৰ পৰা 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কেৱল মিছ এপত Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? Right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably if you compare them to the previous elections. बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? Right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably if you compare them to the previous elections. बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? Right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably if you compare them to the previous elections. बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? Right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably if you compare them to the previous elections. बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time?
right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably, if we compare them to the previous election, बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन. How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. नमस्कार, स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। त्रिपुरा में आज चुनाव हो रहा है और 12 बजे तक का आंकड़ा है 40% मतदान दर्ज किए जा चुके हैं। सभी बड़े जो दिग्गज हैं चुनाव में जो खड़े हुए हैं उन्होंने अपने मतों का इस्तेमाल कर लिया है और लगातार जो कतारें हैं वो बढ़ती जा रही है। चुनाव में अपने मतदान करने के लिए जो वोटर्स हैं वो कतारों में खड़े दिख रहे हैं। इस तरह से ये प्रतिशत जो है वो और बढ़ सकती है। अगले कुछ समय तक हम लगातार कोशिश करेंगे कि चुनाव के हर आयाम से आपको रूबरू करवाएं। हमारे संवाददाता विक्रम सरकार, पिनाकी दास और जयदीप हजारिका लगातार वहां से खबरें हमको दे रहे हैं और वो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह से हम अगले कुछ समय तक जो आंकड़े आ रहे हैं अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रियदर्शनी मेधी और इस तरह से हम अगले कुछ समय तक आपको चुनाव की खबरें अपडेट करते रहेंगे। So viewers, welcome to this special election broadcast and now straight to the top focus this afternoon. Well, brisk voting is underway in Tripura with over 40% turnout recorded till 12 p.m. Well, barring one incident of violence in Komati, the polling has been peaceful so far. Our team of reporters have been bringing you exclusive coverage from ground zero, speaking to top leaders from Tripura as they arrive to cast their votes. And from Tripura Chief Minister Manik Saha to Congress Sudeep Roy Burman and Royal Scion and Tripura Motha Chief Pradyut Dev Verma, your channel Northeast Live spoke to each one of them to get a first-hand account of the polling in Tripura. 100% আমরা জিতবো। আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি আমরা জিতবই। বেশি নিশ্চয়ই বজায় রাখবে, আরো বেশি করব। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা। We are going to have a confident majority. Your views on the role of EC today? EC, the good center is all right, but they have completely, I think, misread the muscle power of the goons where the electors are being obstructed. And so just one last question, sir. How much do you think CPM Congress alliance can? We'll get more than the requisite number, much more than the requisite number. 2018 से पहले त्रिपुरा के लोगों के पास हम लोग जब जाते थे ना, तब जो एक इच्छा लोगों के मन में, लोगों की आंखों में हम लोगों को दिखाई देती थी कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो 25 साल की शासन से। तो वही इच्छा, वही एक होते हैं ना, मैं 6 अगरतला कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो हमारे जो वोटर्स हैं उनकी आंखों में मैंने देखा जीत हमारी निश्चित है। एकदम रिकॉर्ड मार्जिन से हम लोग भारतीय जनता पार्टी इस केंद्र से हम लोग जीत रहे हैं और मैं 60 नहीं बोलूंगी, मेरे ख्याल से अब 54-55 लेकर हम सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। I am asking for a constitutional solution and rights for the people living in the autonomous hill areas. कांग्रेस और सीपीएम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये आम जनता त्रिपुरा में सीपीएम ने 25 साल राज किया। आज कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया में डूबते हुए नया है कि भाजपा को हराने के लिए ये दो दल एक साथ हो रहा है। ये 0-0 = 0 होने वाला है। कुछ नहीं, भाजपा का सरकार बनने वाला है।
All right, viewers. So, top political leaders, they have already cast their votes, as you can see on your screen. So, Ravinder, can you see? Yeah, top political leaders, they have cast their vote, and all the political leaders, they are quite confident of winning this polls, Ravinder. जी बिल्कुल। आज जब वो चुनाव के लिए कतार में खड़े थे तो जब हमारे संवाददाताओं ने उनसे पूछा तो वो बिल्कुल ही एक तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और बिल्कुल विश्वास झलक रहा है कि उनको लगता है कि वही सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आज चुनाव हो रहा है और 2 मार्च को नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन आज जो हमने देखा, जो ऐसा लग रहा था, जो भी बड़े नेता हैं, चाहे त्रिपुरा मोथा के हों, कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हो, सभी को ऐसा लग रहा है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तरह से जो तंज कसना है एक दूसरे पर, वो आज भी हमने देखा कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे को आज भी उन्होंने नहीं छोड़ा। Even today. And Ravinder, well, talking about the polling percentage, well, 40% turnout till 12 p.m. So it's quite a good number. Well, we've also heard CEO of Tripura, Kiran Gite, he was quite confident of a record-breaking voting percentage today. So 40% is a very good number. बिल्कुल। अब सुबह 10 बजे तक जो आंकड़े थे वो 9 बजे तक तो 11% थे और धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ गया, 11 बजे तक हो गया 30% और 12 बजे तक 40% हो गया। और अब हम जब बात कर रहे हैं तो काफी समय निकल चुका है और इस वक्त वो जो डाटा है वो निकालने में समय लगता है। अलग अलग जो वोटिंग जो सेंटर बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए, वहां से वो डाटा जो है इकट्ठा किया जाता है और जल्द ही जैसे जो लेटेस्ट डाटा आता है वो हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। तो जाहिर है कि वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रही है और जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने बताया था कि लास्ट जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें 85-90 के बीच में जो परसेंटेज था, इस बार भी उम्मीद है कि उससे 90 से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो सकता है। Right, very truly said, Ravinder. And obviously, well, we have seen in the previous years, well, Tripura always witnessed massive poll violence, isn't it? But at this time, only one incident has been reported so far. हाँ, ये गौर करने वाली बात है प्रियदर्शनी, जब हम बात करते हैं पोल वायलेंस की, कि कुछ दिन पहले तक बीजेपी के शासन था और लगातार जो सीपीआईएम और कांग्रेस ये हमेशा आरोप लगा रहे थे कि राजनीतिक हिंसा बढ़ते जा रही है, कानून व्यवस्था का नामो निशान मिट गया है, कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन जब से कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, तब से क्या होता है कि ये जो सारा कानून व्यवस्था है ये सब चुनाव आयोग के हाथों में आ जाता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कोई भी पार्टी अब किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती और जो हिंसा हो रहे थे, पोल वायलेंस जिसकी बात हो रही है, वो बिल्कुल नियंत्रित है। अगर ऐसा साफ सुथरा चुनाव हो पाया, अभी समय बाकी है, तो कहा जाएगा कि इस बार रिकॉर्ड चुनाव हुए हैं और वो भी पूरी तरह से फ्री एंड फेयर। All right. So meanwhile, well, the displaced from Mizoram years ago, a total of 14,005 Bru voters are casting their votes for the first time in Tripura. The 14,005 Bru voters are among those who fled to Tripura and took shelter in Kanchanpur and Pani Sagar subdivisions. Well, the Bru voters are casting their votes in different polling stations spread across 4 districts. A big story we are tracking this afternoon, viewers. Well, displaced from Mizoram years ago. Well, a total of 14,005. It's quite a big number. Bru voters are casting their votes for the first time in Tripura. The 14,005 Bru voters are among those who fled to Tripura and took shelter in Kanchanpur and Pani Sagar subdivisions. Well, the Bru voters are casting their votes in different polling stations spread across 4 districts, and we also have reactions. Listen in. This is the first time that we have given the vote in Tripura. We feel very thankful to the government of Tripura and the government of India. क्या चाहते हो वोट देने के बाद में? Actually, now for the Bru settlement team, so Narendra Modi ji is helping us, giving us like monthly cash assistance 5,000 rupees and physical safety for 4,920 and for electricity 12,000 and for to construct 1.5 lakh and after 2 years that to set up all on self giving like 4 lakh rupees and per month we still got one person 17 kg of rice and Uzalas we have got, so we are very thankful. That's why we feel and we are convenient to give to BJP party.
So, Ravinder, 14,005 blue voters have cast their vote today. So, it's quite a big number. So, it will definitely impact a political party because for the first time, the blue voters, for the first time, they are exercising their votes in Tripura. So, it will definitely impact this election, isn't it, Ravinder? What do you think? निश्चित रूप से इसका परिणाम देखने को मिल सकता है जब नतीजे घोषित होंगे, क्योंकि प्रियदर्शनी हमने देखा है पिछले दिनों जो ब्रू वोटर्स को लेकर जो नागरिक हैं उनको लेकर जो खींचतान रही राज्य में, और ये त्रिस्तरीय समझौता हुआ केंद्र और मिजोरम और त्रिपुरा तीनों के बीच में जो समझौता हुआ उसका इम्पैक्ट ये पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि अब जो समझौता हुआ उसके बाद ये पहला चुनाव है और इसमें जो ब्रू मतदाता हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। 14,005 जो मतदाता हैं, रजिस्टर्ड मतदाता हैं। हालांकि चुनाव आयोग की जो कोशिश थी वो 20,000 मतदाताओं को रजिस्टर करने की थी और शुरुआत में 5,000 ही रजिस्टर हुए थे, लेकिन आखिर तक 14,005 जो ब्रू मतदाता हैं वो रजिस्टर हो पाए हैं और उनका जो वोट है वो काफी मायने रखता है। प्रियदर्शनी, एक बात और ध्यान रखना होगा कि जब ब्रू समस्या चल रही थी तब हमने देखा कि त्रिपुरा मोथा के जो चीफ हैं प्रदुत देव वर्मा, उन्होंने ब्रू लोगों की बहुत मदद की थी। जब ब्रू लोगों की जब मदद की थी, उनको राशन दिया था, सब कुछ दिया था, जब वो सड़क पर उतरे थे और अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो हो सकता है कि त्रिपुरा मोथा की तरफ थोड़ा झुकाव हो, लेकिन आखिर में जब ये समझौता हुआ तब केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने इसका फायदा बीजेपी को भी हो सकता है। Yes, Ravinder, we will talk about it. But now I'm being joined live with my colleague Pinaki Das. So, Pinaki, where are you at this point in time? And 40% percentage of vote already cast in Tripura. So, quite a good number. So, what do you see around you, Pinaki? Right now, we are standing just next to the election office. This is the CO's office over here. And right now we are standing here. We had just a talk with the present scenario in Tripura, how polling is taking place. The CEO has assured that the turnout has been large and it will cross more than 90%. But there are stray incidents. What the CEO said. But he has asked the people not to take law and order in their hand, and he has also thanked the political parties. Largely, they are also contributing to this election, though there are small stray incidents in some places, and he assured that everyone will be given an opportunity to cast their vote, and in case someone has some problem or some threats or intimidation, they should not take law and order in their hand. They should appeal to the officers in the ground. And he said there are a huge number of security arrangements that has been made, and more than 400 companies of paramilitary force other than the state police and the state Tripura state rifles in the ground. Overall, it is peaceful. The turnout is large. He said this time it is an inclusive election taking place in Tripura, and it will create a record. That is what he said. It will cross the 90% casting by the evening. जी पिनाकी, अभी तक की क्या खबर है? थोड़ी देर पहले का जो आंकड़ा है वो हमारे पास है कि 40% मतदान जो दर्ज किया गया है, क्या ये ताजा संख्या आपके पास आई है? देखिए, अभी थोड़ा दोपहर में अभी थोड़ा फ्लो कम रहेगा, क्योंकि लोग फिर 2-2:30 बजे के बाद लोग अपना घर का काम, खाना, नहाना वो सब करके फिर यहाँ पे ये ट्रेंड होता है कि लोग फिर से निकल के आते हैं। काफी मात्रा में महिला निकल के आते हैं। एक तो सुबह आते हैं ताकि वो सुबह वोट दे के फिर अपने घर के काम करें, और नहीं तो दोपहर अपने सारे काम करके घर से वो निकलते हैं, और 4 बजे तक वोट रहते हैं, तो उस हिसाब से भी आते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो 12 बजे का नतीजा वही है, उसके बाद कोई अपडेट नहीं किए गए, सरकारी अपडेट नहीं किए, पर अभी तक जहां मुझे लगता है 45% के करीब पहुंच जाएंगे होंगे, और ये 2-2:30 बजे के बाद बहुत काफी मात्रा में बढ़ता है, और महिलाओं का पार्टिसिपेशन पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा होता है त्रिपुरा के। जो अभी तक मैंने इतने इलेक्शन कवर किए उसमें देखिए महिलाओं का बहुत जोरदार पार्टिसिपेशन होता है इस डेमोक्रेसी को बचाने में। Right, Pinaki, you have also visited the control room. So, how's the atmosphere there while casting vote in the control room?
See, people are ready to cast their vote. It's like a festival in Tripura generally, Yeah. and we have seen also that since morning long queues over here, and some of the VIP voters also we have covered. Everyone expect that the voting will be in large number, though the opposition parties, particularly Tripura Motha Supremo Pradyut Kishore and opposition leader Manik Saha, both have said that vote is going on in large number, but there have been little apprehension about, because there were small stray incidents those took place. But they also thanked the Manik, Dr. particularly Manik Sarkar, particularly he has also thanked opposition. Manik Sarkar has also thanked the CEO for taking prompt action. Though at local level, he said there are some lacks and lacunas in the action, but he said overall he expect that people will turn out in large number, and that is happening, and which is a healthy sign for democracy. जी पिनाकी, ब्रू मतदाता इस बार 14,005 जो रजिस्टर्ड हुए हैं। हालांकि कोशिश थी कि और ज्यादा मतदाता ब्रू समुदाय के रजिस्टर्ड हों। 14,000 मतदाता जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो मतदान कर रहे हैं। ये क्या मायने रखता है त्रिपुरा चुनाव में, क्योंकि ये पहला बार है जब ब्रू मतदाता हिस्सा ले रहे हैं चुनाव में। इनकी संख्या घटती है या बढ़ती है चुनाव में हिस्सा लेने की, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा पार्टियों को? पार्टियों को ये फर्क पड़ेगा कि देखिए, ब्रू ये जो कम्युनिटी है, नया एक कम्युनिटी है यहाँ पे, और इसका ये होगा कि त्रिपुरा में जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप पिछले इलेक्शन में भी देखेंगे दो सत्ता में पार्टी बीजेपी और सीपीएम जो है, उनमें भी परसेंटेज वाइज बहुत कम है, और यहाँ पे 1-2 वोट से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इतना 12 जगह पे ब्रू लोगों को सेटल करना है, और जो बता रहे हैं जो 14,000 जो अभी तक वोटर्स उनके आए से, वो काफी अहम रोल रहेगा उनको, जो किस सरकार पक्ष बनाने में इनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक नया तरह का वोटिंग होगा, क्योंकि इनका जो मेन मुद्दा था रिहैबिलिटेशन, इनका अपने राज्य में तो नहीं हुआ पर त्रिपुरा में हुआ है। अभी इनका किसके तरफ इनका वीकनेस रहेगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि बीजेपी एक तरह से अगर आप देखिए तो होम मिनिस्ट्री पर्टिकुलरली अमित शाह एंड देन चीफ मिनिस्टर बिप्लब देब का भी एक रोल था। हालांकि प्रद्योत किशोर का एक मेजर रोल था, और यहाँ पे जब ब्रू को लेके उनका सेटलमेंट को लेके प्रोटेस्ट हो रहा था, तो प्रद्योत किशोर एक वो ग्राउंड पे जाके उनके साथ दिखाई दिए। तो ये वोट त्रिपुरा मोथा के पक्ष में जाता है कि बीजेपी के पक्ष, सत्ताधार बीजेपी के पक्ष में जाता है, वो अभी कह नहीं सकते। पर ब्रूस इतना संख्या में 1,000 करके भी हम अगर मान लेते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर हो सकते हैं बहुत जगह पे, क्योंकि ये वोट जनजाति एरियाज में मेनली इनका सेटलमेंट हो रहा है। तो जनजाति एरियाज में ऑलरेडी प्रद्युत या त्रिपुरा मोथा के काफी पकड़ है। तो अगर ये उनके पक्ष में ये वोट भी जाता है तो ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हालांकि बीजेपी के पक्ष भी जा सकते हैं कि बीजेपी का सरकार आने के बाद ही ये जो 20-22 साल का पुराना जो इश्यूज था, लोग बहुत ही बुरी तरह से रहते थे, रिफ्यूजीज या डिस्प्लेस कैंप में रहते थे, उनको एक परमानेंट सेटलमेंट दे तो उनके पक्ष में भी जा सकते हैं। तो पर मूड ये है कि अच्छी बात ये है, ये लोग आके जो डेमोक्रेसी या पोलिंग सिस्टम में ये त्रिपुरा में पहली बार वोट कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। बिल्कुल। So Pinaki, we have seen that 40% of the voting percentage, they have already cast their vote officially. So the voting will end at 4 p.m. officially. But is there any chance of extension? Because Kiran Gite, the CEO of Tripura, he said that he is expecting more than 90% of vote cast. See, once you enter the polling station by 4 o'clock, you will be assured that you will be able to cast your vote. Generally, majority of the areas, the voting end by within the time schedule, that is 7 to 9. But we have seen earlier also in some of the polling booths where the turnout is very high, or the voters number are more than 1,200. In that case, it continues after that also. Even after 6-7 o'clock, it continues, and the election commission make all arrangement, including during the night hour light
facilities are there, electricity there. They keep candles and other things also prepared with a backup of 4 hours of CCTV recording. So it will continue, and once they enter within the time, everyone will be able to cast their vote. That is the assurance the election commission every time give. And we find that in the afternoon time, after 2 o'clock, women turnout very high, and Tripura has a record of women turnout overall more than the men. That is a good sign in democracy, and we this time also expect that this will cross the 90%. Let's hope for the best. जी पिनाकी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम थोड़ी देर बाद फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन फिलहाल जो पहली बार जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, जो युवा मतदाता हैं, उनकी प्रतिक्रिया हम आपको सुनाना चाहते हैं। उनमें किस तरह का उत्साह है इस चुनाव को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज वेल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, इसीलिए सुबह सुबह उठ के आ गए सब पूरे फैमिली के साथ। बीइंग समवन ऑफ माय एज ग्रुप, आई वुड से मोर जॉब्स इन द सिटी. When I say jobs, just not government jobs, right? Private players should come up into the state as well. That would change the economic condition, the stature which we stand right now. And most importantly, I'd say no post-war violence. We have seen in last 2 elections, not only in 18, even 13. I'm old enough to remember all this. So that's all. What else? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब फर्स्ट टाइम दे रही हूँ तो बहुत एक्साइटमेंट है कि कैसा होने वाला है, मतलब प्रोसीड्योर एंड ऑल, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी ये फंडामेंटल राइट है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें टू द स्टेट, कि कौन हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने इन द स्टेट, एंड बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेवलपमेंट एंड फॉर एवरीथिंग इन द स्टेट। All right, viewers, now it's time for a very short break. Stay tuned. We'll be right back with more updates from Tripura. Day